Hey, hi everyone. So I welcome you all at Rodha and let's do a fantastic LRDA set here. Okay, so it's a very good set and we'll see how to approach such sets. There's a different approach to such sets actually. Let's learn this, guys. It says that each person among a group of three friends, Simran, Akash, Mini, had some pizzas and some Diet Coke cans. Okay, Simran had at least one pizza and twice as many Diet Coke cans as pizzas. Akash had at least one pizza and thrice as many Diet Coke cans as pizzas. Mini had at least one pizza and number of Diet Coke cans consumed by her exceeded the number of pizzas by 3. So total number of items they consumed is less than 20. No person consumed more than 3 pizzas here. Okay. So you can just tabulate this data here. थोड़ा सा tabulate कर लेते हैं. Okay. So I made a different slide here. देखो. तो what I can say here is that there are three guys here. उनका नाम लिख लेते हैं. तो these three guys are basically आपके हैं सिमरन, आकाश and मिनी. तो सिमरन, आकाश and मिनी. ओके. एंड देन इनके पास तीन चीज़ें हैं बेसिकली. दो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ाज एंड डाइट कोक कैंस, राइट. सो आप बोलोगे इनके पास पिज़्ज़ाज हैं एंड डाइट कोक के कैंस हैं. फाइन. Okay, so what I can say here is say here is guys कि लेट्स से सिमरन के पास अभी पता नहीं मेरे पास कितना पिज़्ज़ा है. ओके, बट इट सेज दैट सिमरन हैड एटलीस्ट वन पिज़्ज़ा एंड ट्वाइस एज मेनी डाइट कोक कैंस एज पिज़्ज़ाज. तो लेट्स से अगर सिमरन के पास एक्स पिज़्ज़ा है, सो इफ सिमरन हैज़ गॉट एक्स पिज़्ज़ाज, सो डाइट कोक इसके कितने हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे इसके, है ना. सो बेसिकली ट्वाइस 2x हो जाएगा एंड द टोटल आइटम्स सिमरन वुड हैव इज 3x here, राइट. अच्छा, आकाश had at least one pizza and thrice as many Diet Coke cans as pizzas. So let's say Akash has y pizzas, so Diet Coke इसका thrice है, that means it is 3y and total items with Akash will be 4y, है ना. Mini had at least one pizza and the number of Diet Coke cans consumed by her exceeded the number of pizzas by 3. That means if Mini has Z pizzas, so number of Diet Coke cans is exceeding it by 3. That means 3 ज़्यादा है. Okay. So total number of items with Mini is what? 2Z plus 3. That's what we can see from this part here. Okay. And what they are saying also is कि the total items is less than 20. Okay. So what I can make here? I can make here a small data. So I can write this data here. So 3x plus 4y plus 2z plus 3 is the total items here and this is equal to less than 20, right. So now we can have a look. So this is what we can infer from the this set here. Okay, so now let's look at the questions. देखो question क्या है. Question says that if Simran has at least 6 items in total and the total number of items consumed is not equal to 17, find sum of all possible unique values of number of items Mini have. Okay. तो ठीक है, सिमरन हैज़ एटलीस्ट 6 आइटम्स इन टोटल. सो सिमरन हैज़ गॉट 3x आइटम्स इन टोटल. तो आप बोलोगे 3x इज एटलीस्ट 6, दैट मीन्स x इज एटलीस्ट 2, है ना. x क्या है तुम्हारा, एटलीस्ट 2 है. सो अब देखो, आई नीड टू फॉर्म सम केसेज हियर, राइट. सो इफ आई ट्राई टू फॉर्म केसेज हियर, तो मैं बोलूँगा लेट्स से आई टेक x इक्वल टू 2. मैं x को 2 लेता हूँ. इफ आई टेक x इक्वल टू 2, नंबर ऑफ आइटम्स विद सिमरन विल बी 6. ओके, देन I can take multiple cases of y and z also. तो let's say for example right now I'll take y equal to 1. तो अगर मैं y equal to 1 लूँ, तो ध्यान रखना ये y it's not the value of 4y, ये y की वैल्यू है. y equal to 1, ये x equal to 2. So if x is 2, 3x is 6. If y is 1, then 4y is 4. Okay. And let's say z को भी 1 ले सकते हैं केस में. Let's say I took z also as 1. If I take z equal to 1, so 2 into z plus 3, that is 2 into 1 plus 3 is 5. That means ये 5 items हो गया. 6 plus 4 plus 5 will be equal to 15. That means if I say x equal to 2, y equal to 1 and z equal to 1, total 15 items है, that is less than 20. Perfectly satisfying. Then you can say that okay, I can make it like मैं इसको 2 रख देता हूँ. अब बोलोगे सर इसको 2 और 1 को फिक्स कर देते हैं. I can make it like I can fix 2 and 1 और ये 1 था. अब बोलोगे इसको 2 कर लेते हैं. Let's make it right. अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ, देखो तो क्या होगा. आप बोलोगे ये तो आपका 6 ही रह जाएगा. x is 2, then this is 6, y is 1, then this is 4 and z is 2. So 2 into 2 plus 3 is now 7.
So 6 plus 4 plus 7, the total number of item is 17 now. Okay, so as per the first question, Simran has at least 6 items in total and the total number of items consumed is not equal to 17. That means 17 के equal नहीं है. That means what I will say कि यार ये केस तो नहीं जाएगा. Okay, this case is not possible. तो मैं क्या करूँगा, मैं इस केस को कट कर देता हूँ. This case is not possible. Okay, क्योंकि 17 तो नहीं हो सकता. Right. Now let's move to next case now. So can I say कि I can make now 2 and 1 fix किया था. Can I make 2 1 3, 2 1 1, 2 1 2 and 2 1 3. Okay. So if I make it 2 1 3, so again x equal to 2 पे this becomes 6, y equal to 1 पे this becomes 4, z equal to 3 पे क्या हो जाएगा, 2 into 3 plus 3 is 9, तो ये 9 हो जाएगा. Now 6 plus 4 plus 9 is 19, total 19 items is still acceptable. ये भी आपका क्या है, acceptable है, right? Okay. Now अब आपका अब देखो ऑब्वियसली नाउ यू कैन नॉट मेक इट लाइक आप इसको 2 1 4 नहीं कर सकते. व्हाई यू कैन नॉट मेक इट 2 1 4? बिकॉज अब नाउ एट 4 इट विल एक्सीड 19. अब 20 से कम नहीं, 20 से कम होना चाहिए ना, शुड बी लेस देन 20 ईयर. ओके, सो नाउ इट इज ऑलरेडी 19. तो द मोमेंट आई मेक इट 4 तो ये आपका 19 से एक्सीड 20 से एक्सीड कर जाएगा. ओके, दैट मीन्स आई शुड नॉट टेक केस ईयर. तो मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए. आई जस्ट रब ऑफ दिस केस ईयर. ओके, नाउ तो अब बोलोगे सर 2 1 1 का, तो 2 और 1 को फिक्स किया था, ये केसेस तो हो गए. अब बोलोगे अब 2 2 ले सकते हो. मैं बोलूँ बिल्कुल 2 2 1 ले सकते हैं. सो पहले मैंने सारे क्या किए, मैंने सारे पहले 2 1 के केस लिए, 2 1 2 1 2 1, अब 2 2 के केस ले रहा हूँ. ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, तो मैं बोलूँगा कि 2 2 1 पे देखो क्या हो जाएगा. सो x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको भी. ओके, सो आई विल से एट x इक्वल टू 2 दिस बिकम्स 6, at y equal to 2 this becomes 8, and at z equal to 1 this becomes 5. तो 6 plus 8 plus 5 आपका 19 आइटम हो रहा है. दैट इज फाइन. मुझे लेस देन 20 चाहिए था, तो अगेन परफेक्टली फाइन, राइट. अच्छा, फिर 2 2 1 हो गया. नाउ कैन आई मेक इट, अब बोलोगे कैन आई मेक इट 2 3 1 नाउ. मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं, बिकॉज अभी एग्जैक्टली 19 है, थोड़ा सा भी इसको बढ़ाया 2 से तो अब 19 क्रॉस कर जाएगा. दैट मीन्स आई वांट लेस देन 20, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट. सो अब बोलोगे यहाँ पे भी 2 2 1 इज फिनिश्ड हियर. सो व्हाट आई कैन डू नाउ, तो मैंने यहाँ पे पहले 2 2 1 के 2 1 2 1 के केस लिए, फिर 2 2 केस ले लिया. सो आई टेकन ऑल द केसेस फॉर y एंड z नाउ. अब इस 2 को 3 कर देते हैं. लेट्स मेक दिस 2 3 नाउ. अगर मैं इसको 3 कर दूं तो लेट्स मेक इट 3 1 1, है ना. सो x इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा 9, y इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 4, एंड z इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 5. 9 plus 4 plus 5 is 18. So total items here is 18. Still acceptable, right? Because it is less than 20. Now you can say that कि अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे इसको 4 करूँगा मैं, तो जैसे इसको 4 करूँगा 20 एक्सीड कर जाएगा. ओके, दैट यू कैन सिंपली ऑब्जर्व दिस, राइट. तो बोलोगे पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स ऑल इन ऑल दीज 4 केसेज आर पॉसिबल. 1 2 3 and 4. So for the first question 4 cases are possible. ठीक है. Now what in this question they are saying is फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिक वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स मिनी हैव. देखो तो मिनी के पास कितना आइटम है, तो इन दिस केस मिनी हैज गॉट 2z plus 3 ना. तो आप देखोगे मिनी के पास कितना आइटम है, 2z plus 3 है. ओके, दैट मीन्स आई वॉन्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z हियर. सो इफ आई ऑब्जर्व दिस केसेज हियर, तो मुझे देखो डिफरेंट वैल्यू ऑफ z कहाँ मिलेगा, तो वेयर आई विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ z. तो ऑब्जर्व करोगे दिस इज अ रो ऑफ z हियर. सो इन ऑल द 4 केसेस there are only two different values of z, क्योंकि in the 3 cases value of z is 1 1 and 1 only, है ना. तो ये बोल रहे हैं कि मुझे all possible unique values चाहिए, that means different values चाहिए. okay, that basically means that what I want is I want कि मुझे ये जो 1 था आपका, this is 1 and 3, only 2 different values are possible. So if only 2 different values are possible, so what I can say that कि आप बोलोगे sum of in the first case if I put z is equal to 1, तो z equal to 1 होगा, then total items with mini is 5, है ना. 2 into 1 plus 3 is 5, and in the second case if z is equal to 3 होएगा, here z is 3 here, so in that case 2 into 3 plus 3 is 9, तो 9 हो जाएगा. That means total number of all like sum of all the possible unique values with mini is equal to 14. तो मैं बोलूँगा 14 is the answer for this question. Okay, I hope it is clear to all of you, right? Okay,
So this is the like how can you start this set and then we can now move ahead. अब second question थोड़ा आपको better लगेगा, okay, because already आपने set समझ लिया है, set को crack कर लिया है, ठीक है. So all these feelings will make like second question a better one. Okay, now let's see what is second question here. Second question says that देखो it says that refer to the data in the previous question. अच्छा, it's a connection from previous question only, right? So refer to the data in the previous question, find sum of all possible unique values of number of items आकाश है. Okay, तो ये निकालना है फाइंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स आकाश है. देखो आकाश के पास कितना आइटम्स है, तो अब बोलोगे आकाश के पास टोटल 4y है ना. तो ओके, तो ऐसे आकाश हैज़ गॉट टोटल 4y आइटम हियर. तो आकाश हैज़ गॉट टोटल 4y आइटम्स. ओके, नाउ इन द डेटा विद डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो आप देखोगे y की वैल्यूज क्या क्या है. तो ये y का रो है ना. देखो y की वैल्यूज क्या क्या थी. इफ यू लुक एट दिस रो हियर, इफ आई सिंपली लुक एट दिस रो, ये अगर मैं ये रो देखूँ यहाँ पे, ओके, तो इस रो में क्या हो रहा है, व्हाट इज y के दो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज हैं. एक तो तीन केस में तो वन ही है, वन है एंड वन है. एक डिफरेंट क्या है, 2 है. व्हाट आई कैन से इज दैट इन 3 डिफरेंट केसेस इट इज 1 एंड 1, तो वो तो कॉमन ही वैल्यू हो गया, एक 2 ही अलग हो गया. तब बोलोगे कि y की 2 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है. देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y हियर. तो आई कैन से दैट वंस आई मेक दिस आई कैन से दैट कि इन द फर्स्ट केस व्हेन y इज इक्वल टू 1 then total number of items with Akash is 4 into 1 is 4, and in the second case when y is equal to 2 the total number of items with Akash is 8, 4 plus 8 is how much, 12. Okay, so sum of all possible unique values of number of items Akash has is 12. So 12 is the answer for this question. Okay, so दो first question solved and 2 questions very easily आपका निकल गया. Okay, fine. चलो let's go to third question now. See what they are saying in third question here. They are saying that if Akash had 6 Diet Coke cans and total number of items consumed by all 3 friends is greater than 16, right? So देखो, just refer to that table we made here. Okay, तो let me just make it once more. ये table हमने यहाँ बनाया था, ये same table यहाँ पे. Okay, so I can just make this table here. Simran, this one. Okay, this Simran, pizza and all that stuff, right? A Diet Coke. Okay, let's make it. Okay. तो यहाँ बनाते हैं थर्ड. देखो आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है ना, थर्ड एंड फोर्थ भी काम है क्योंकि फोर्थ भी सेम ही क्वेश्चन है. रेफर टू डेटा इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो थर्ड क्वेश्चन का डेटा बनाएंगे वो फोर्थ में भी काम आएगा. ओके, तो वी वुड हैव रेड दिस क्वेश्चन एट द फर्स्ट, राइट. सो नाउ आई विल से कि अगेन क्विकली मेक दैट 3 लोग हैं यहाँ पे, 3 लोग हैं यहाँ पे, सिमरन, आकाश एंड मिनी, राइट. एंड दे आर हैविंग अ पिज्जा and the other drinks that is Diet Coke here, right? Diet Coke. Okay, पिज़्ज़ा के साथ Diet Coke है, टेस्ट भी हेल्थ भी. ओके देखो, तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि आई कैन से सिमरन के पास पिज़्ज़ा है, तो दैट मीन्स क्या था स्टेटमेंट कि इसके पास x पिज़्ज़ाज है एंड 2x पिज़्ज़ाज है, राइट. तो x पिज़्ज़ा है एंड ट्वाइस एज नंबर ऑफ कोक है, तो टोटल आइटम इज 3x. ओके, देन आकाश के पास y पिज़्ज़ा है एंड डाइट कोक इज थ्राइस. ओके, दैट मीन्स 3y. तो 4y वी ऑलरेडी कैलकुलेट दिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. एंड देन मिनी हैज z पिज़्ज़ा एंड z plus 3 डाइट कोक कैंस. टोटल आइटम इज 2z plus 3. ओके, ग्रेट. सो नाउ व्हाट आई कैन से दैट they are saying that Akash had 6 diet cokes. Okay, so again ये मेरा स्टेटमेंट क्या बनता है, 3x plus 4y plus 2z plus 3. That means the total number of items is less than 20 here. Okay, if Akash had 6 Diet Coke cans, that means exactly 6 है. तो आप बोलोगे in this case 3y is equal to 6. Okay, so 3y is equal to 6, therefore y will be equal to 2. ये आपका पक्का आ गया. That means y की फिक्स वैल्यू हो गई. in the further questions आपकी y की फिक्स वैल्यू क्या हो गई, y की फिक्स वैल्यू 2 हो चुकी है. Okay, so I just write here y की fixed value is 2 now because 3y is 6, so y is equal to 2. ये पक्का आ गया आपका. Okay, so now what I can say that if Akash had 6 Diet Coke cans and total number of items consumed by all 3 friends is greater than 16, so now it should be greater than 16. Okay, so what is sum of the number of pizzas consumed by Simran and sum of the number of Diet Coke, sum of the number of Diet Coke cans consumed by Mini. Fine. देखते हैं यहाँ पे. देखो, तो अगर मैं यहाँ पे केसेस बनाऊंगा तो मुझे क्या पता है कि y की वैल्यू ऑलरेडी 2 है. तो इफ y इज इक्वल टू 2
देन आकाश हैज़ गॉट टोटल 8 आइटम्स, है ना. देन व्हाट आई कैन टेक हियर, तो आप बोलोगे आई कैन टेक मल्टीपल केसेस अगेन, तो मैं बोलूँगा ठीक है x को 1 ले लेते हैं, x को 1 ले लो. इफ आई टेक x इक्वल टू 1 देन आइटम्स विद सिमरन इज 3 into 1 is 3, and if I take z also equal to 1, okay, if I take z equal to 1 तो आप बोलोगे in that case 2 into z plus 3 is 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. 3 plus 8 plus 5 is 16, so I think 16 is admissible, कोई दिक्कत नहीं है. I think ठीक है ना. 2 into 1 plus 3 is 5 plus 8 13 3 16, right? ठीक है. तो now 16 is admissible, 16 में कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं बोलूँगा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे कितने हो गए आपके. तो दिस टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इज अच्छा सॉरी यहाँ लिखा है ना, इट शुड बी ग्रेटर दैन 16. ओके, इट शुड बी ग्रेटर दैन 16. तो ग्रेटर दैन 16 का मतलब क्या है कि आई कैन नॉट टेक फर्स्ट केस है, मैं फर्स्ट केस को क्रॉस करना पड़ेगा हमें. ओके, शुड बी ग्रेटर दैन 16, राइट. सो द नेक्स्ट केस आई कैन टेक हियर इज मैं इसको 2 y तो 2 बिल्कुल फिक्स ही है ना. तो आप बोलोगे इसको 2 वर्ड कर देते हैं. लेट्स मेक इट 2 एंड लेट्स मेक इट 1. z इक्वल टू 1. सो x इज 2, y इज 2 एंड z इज 1. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स गाइस. तो x 2 पे 6 हो गया, y 2 पे तो 8 है ही, एंड z 1 पे 5 हो गया. 6 plus 8 plus 5 is 19. तो 19 is fine because it is less than 20 and also greater than 16 also. 19 is fine. अब बोलोगे सर यहाँ पे एक और चेंज कर सकते हैं. आई कैन ऑल्सो मेक इट लाइक ये 2 तो फिक्स ही है, ये 2 और 1 किया, इसको 1 और 2 कर लेते हैं. ओके फाइन. इफ x इज इक्वल टू 1, सो इफ x इज इक्वल टू, लेट्स राइट हियर, सो इफ x इज इक्वल टू 1, देखो, so if x is equal to 1 the total items is 3 here, if y is 2 total items is 8 here, and if z is 2 total item is 2 into 2 plus 3 is 7. 3 plus 8 plus 7 is 17. तो आप बोलोगे यहाँ पे 17 आइटम हो रहा है. ये भी ठीक है. ओके ठीक है ना. x is 1 पे 3, y 2 11 and 2 into 2 plus 3 is 7. तो 3 plus 8 is 11 and 11 plus 7 is 18. तो ये 18 हो जाएगा. तो ये भी ठीक है. इट इज़ ग्रेटर देन 16 बट मोर देन 18, लेस देन 20 है. तो ये भी ठीक है. नाउ आई कैन नॉट मेक इट एनी फर्दर चेंज बिकॉज मैंने यहाँ पे 2 फिक्स किया था. एक बार 2 and 1 इधर किया, एक बार 1 2 इधर किया. नाउ आई कैन नॉट मेक एनी फर्दर चेंज बिकॉज जैसे 3 करेंगे वैल्यू क्या होगा, 20 एक्सीड कर जाएगा. मार्जिन है नहीं अपने पास, बिल्कुल 20 से लेस है 19 18 है ना. दैट मीन्स हियर ओनली 2 केसेज आर पॉसिबल, राइट. तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ पिज्जाज कंज्यूम्ड बाय सिमरन. तो सिमरन ने कितना पिज़्ज़ा लिया था, x. ओके, तो अब सिमरन हैज टेकन हियर x पिज़्ज़ाज. तो आप बोलोगे यहाँ पे तो x के 2 केसेस आए है ना. तो मैं बोलूँगा सम ऑफ नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज कंज्यूम्ड बाय सिमरन. तो पिज़्ज़ाज कंज्यूम्ड बाय सिमरन प्लस डाइट कोक कंज्यूम्ड बाय मिनी. ओके, तो डाइट डी के लिए डाइट कोक के लिए डी, मिनी के लिए m. ओके, ये सम निकालना है हमको. देखो ये सम कितना होगा, ऑब्जर्व करो यहाँ पे. इन द फर्स्ट केस पिज़्ज़ा और सिमरन कितना हो गया आपका, ये x की वैल्यू हो गई. x कितना है इन द फर्स्ट केस, x इज 2. तो आप बोलोगे 2 हो गया प्लस डाइट कोक बाय मिनी. व्हाट इज डाइट कोक बाय मिनी, कितना हो जाएगा, इसने कितना कंज्यूम किया है. तो मिनी ने डाइट कोक कंज्यूम किया है z प्लस 3. ओके, एंड इन द फर्स्ट केस z इज इक्वल टू 1. सो z प्लस 3 विल बिकम 4 है ना. 1 प्लस 3 इज 4. तो आप बोलोगे 2 प्लस 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 6 हो गई. करेक्ट है ना. दिस इज द वैल्यू ऑफ x हियर, दैट इज सिमरन ने जितना पिज़्ज़ा लिया है, तो पिज़्ज़ा कंज्यूम्ड बाय सिमरन इज इक्वल टू x एंड x इज 2. एंड डाइट कोक कंज्यूम्ड बाय मिनी इज z प्लस 3. तो फर्स्ट केस में z इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस 3 इज 4. तो 4 आ गया यहाँ पे, 2 प्लस 4 इज 6. ओके फाइन. देन सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, जो कि सेकेंड केस हियर अगेन यहाँ पे x की वैल्यू 1 है. तो पिज़्ज़ाज कंज्यूम्ड बाय सिमरन इज ओनली 1. इन द सेकेंड केस x इज ओनली 1. ओके, एंड डाइट कोक कंज्यूम्ड बाय मिनी इज z प्लस 3. तो यहाँ पे z की वैल्यू 2 है. तो बोलोगे 2, अगर z की वैल्यू 2 है, सो 2 प्लस 3 बिकम्स 5. तो 5 हो जाएगा एंड 6. तो इन बोथ द केसेस आई एम गेटिंग आंसर एज 6. तो हम क्या मार्क करेंगे, आई विल मार्क माई आंसर एज 6. 6 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, बोथ द केसेस 6 आंसर आ रहा है. फाइन, ठीक है. थर्ड इज ऑल्सो डन. लेट्स कम टू फोर्थ क्वेश्चन गाइस. देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है. द फोर्थ क्वेश्चन हियर सेज दैट refer to the data in the previous question. What is the number of pizzas consumed by Mini? Okay, so number of pizzas consumed by Mini. If you observe here, so number of pizzas consumed by Mini is how much? Is Z. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बोलोगे in this case Z equal to या तो 1 है या तो 2 है. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, here what is the answer? Answer will be
z इज इक्वल टू 1 और 2, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन ऐसा रहता है लाइक A1, B2 एंड C3 एंड D इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके। तो ऐसे ऑप्शंस रहते हैं इन जनरल, तो आप आराम से डी मार्क कर दोगे, है ना, बिकॉज आई डोंट नो इट इज़ 1 और 2, 1 भी ऑप्शन में 2 भी ऑप्शन में, ओके 3 नहीं है, तो आंसर इज डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो जस्ट जेड क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1 और 2, ओके। तो अच्छा सेट है गाइस, इट्स अ वेरी गुड सेट एंड यू शुड नो हाउ टू अप्रोच सच सेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे इसको अप्रोच करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल माइंड में छुपा रह जाता है, ओके। आई एम नॉट एबल टू लाइक थिंक ऑन दीज काइंड ऑफ सेट्स, ओके। चलो, so thank you guys, and let me inform all of you one very important thing guys, there's a flat 25% discount on all CAT subscriptions, okay। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे ये, and this 25% ऑफर इज लाइव आफ्टर 3 to 4 months, ठीक है। 3 months पहले ही ऑफर आया था, और 25 months 25% ऑफ कभी कभी आता है, एंड 25% ऑफ इसलिए बिकॉज इट इज़ मार्च एंड, फाइनेंशियल ईयर का एंड है। तो बेसिकली यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, दोज हु वांट टू इनरोल टू दिस। तो बेसिकली आपको एक ये रेफरल कोड लगाना पड़ेगा, ये आपका रेफरल डिस्काउंट कोड है। द मोमेंट यू पुट दिस इन लाइक इन देयर वेबसाइट जहाँ पे इनरोलमेंट आता है, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट, ओके। सो बेसिकली हम लोग बेसिकली भी कर क्या रहे हैं इन द बैचेस टर्म्स में, कि क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, आपको बता देता हूँ मैं, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज कि 30th मार्च से मैं एक बिल्कुल फ्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ नंबर सिस्टम का। सो दिस नंबर सिस्टम विल बी अ फ्रेश कोर्स एंड दिस विल बी लाइक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके। तो ये 30th मार्च से लाइव लूंगा मैं, ओके। एंड दिस टाइमिंग विल बी 10:30 AM। जिसको लाइव नहीं रिकॉर्डिंग देख सकते हो, आपका विश, राइट। लाइव क्लास के खत्म होने के हाफ एन आवर के बाद जस्ट आफ्टर 30 minutes उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है। तो आप रिकॉर्डिंग को 1.5x में, 1.25x में, जैसे आपको विश हो वैसे देख सकते हो। लाइव देखना है, लाइव मिलते हैं, लाइव मिल सकते हो, लाइव मिलेंगे, बातें करेंगे, ठीक है, देखेंगे क्या इश्यूज चल रहा है, क्या डिस्कशंस आप लोग करना होता है। सो ऑल दैट वी डू इन द लाइव क्लासेस, ओके। सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर आपका ये टाइमिंग सूट नहीं करता, तो अभी मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया है। सो इन हमारा रेगुलर टाइम 10 PM पे होता है, तो मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किया है 10 PM बैच में, ओके। अभी जस्ट 4 to 5 क्लासेस हुई हैं एंड इट्स अ बिग कोर्स। अलजेब्रा इज अ बिग कोर्स, अराउंड 40 क्लासेस ऑलमोस्ट करेंगे हम लोग इन द कमिंग 1.5 month। तो इसकी जो क्लास चलती है 5 days a week। तो 5 days a week चलता है आपका अलजेब्रा का क्लास, राइट, ओके। देन अभी हमने जस्ट इसका अर्थमेटिक ख़त्म किया है, तो आप लोग अपने पेज से जैसे आपको विश करें, राइट। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कैट 22 की सारी क्लासेस ली थी लास्ट ईयर कैट की, ओके। उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है, और आपको पता है कि इन रिकॉर्डिंग्स में क्या है, इन रिकॉर्डिंग्स में देयर आर 520 LRDI सेट्स, जिसको आप अपने पेज पे कर सकते हो। देयर इज़ लाइक 2600 प्लस क्वांट का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है लाइव क्लासेस में, ओके। एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बूस्टर सेशन, सबकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। एंड कैट 22 का मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल कैट 22 में अराउंड 13 to 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 22 बिल्कुल हमारे क्लासेस से आए थे, ओके, क्वांट में। तो ये आप बिल्कुल अवेल कर सकते हो। और अदरवाइज नहीं तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो वही फोर्थ चीज़ बता रहा हूँ कि मैं लाइव क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अभी LRDI का मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ इवनिंग में 5 to 7 PM, हाँ, दैट इज़ 3 days a week, ओके। तो अल्टीमेटली आपका जो क्लास, आप कोई भी इसमें से 2 कोर्स चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा टाइम में 3 भी चूज़ कर सकते हो, बट 2 कर सकते हो। तो आप बेसिकली 10 PM में अलजेब्रा पढ़ सकते हो एंड 5-7 PM में LRDI पढ़ सकते हो। तो बेसिकली मेरी क्लासेस चलती है अराउंड 8 क्लासेस अ वीक चलती है, ठीक है। सो रफली 8 क्लासेस अ वीक, 5+3। अब बहुत डिटेल में लोग पढ़ते हैं, लाइक हम लोग 500 LRDI सेट्स फिर सॉल्व करेंगे, काफ़ी नए नए सेट सॉल्व कर रहे हैं इस साल भी, ओके। एंड आपको अगर किसी को अर्थमेटिक से स्टार्ट करना है, तो अर्थमेटिक की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अर्थमेटिक खत्म कर सकते हो। सो कम्प्लीटली योर विश। सो वंस यू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, ये आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कैसे भी अपने कोर्सेज को फिनिश कर सकते हो, लाइव आ सकते हो, मैं डेली लाइव पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद पूरी आपको मेरी बुक है, उसका पूरा आपका ईव्यू फॉर्मेट में पूरा एक्सेस है, प्लस में, ओके। आइकॉनिक में उसके प्रिंट आउट मिल जाती है। एंड देन उसके बाद लॉट्स ऑफ लाइक 9300 प्लस क्वांट क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेक्शन में, ठीक है। तो कोई बेसिकली इतना करने के बाद यू नो बुक इज़ रिक्वायर्ड, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ओके। सो यू कैन यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी गाइज, आप आराम से ये अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हो, ओके।
and we'll continue all the videos and all the sessions, guys. Okay, chalo, thank you.